Good morning, everybody. We welcome you to this devotional in the name of Jesus. आप सभियों को गुड मॉर्निंग। इस डिवोशनल में आपका स्वागत है यीशु के नाम Our से। God is indeed a faithful one. हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। I still remember मैं याद करता हूँ it was the end of February. फरवरी के अंत का सप्ताह था। We were just getting used to the words like quarantine and social distancing, etc. क्वारंटीन और अपने आप को समाज से अलग रखना, अपने आप को जो है लोगों से दूर रखना, ये बातों से हम वाकिफ ही हो रहे थे। We had no clue that COVID-19 is going to take the world by storm. और कोई अंदाजा भी नहीं था कि ये कोविड-19 जो है उसका इतना असर, भारी असर ये दुनिया पर पड़ेगा। We could not imagine that there could be a lockdown that's coming up. और हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा लॉकडाउन आएगा। In the midst of all that, इस सारी चीजों के बीच without any clue, हमको कोई अंदाजा as नहीं I था। was hearkening my ears to hear from the Lord, जैसे मैं अपने कानों को परमेश्वर की ओर लगा रहा to था receive a theme for the church for the month of February, March. मार्च के महीने में, ताकि मैं परमेश्वर से शीर्षक को पालूं। The Lord spoke forth and said, परमेश्वर ने बात कर कर कहा the battle belongs to Him. कि युद्ध यहोवा का है, The battle belongs to the Lord. युद्ध उनका है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, that has been the case of each one of us. और ये हमारा भाग है। You know how the Lord is fighting your battle and my battle. कैसे परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ते In हैं, the midst of all negativity, that the Lord has hedged us around. और सारे नकारात्मकता के बीचों बीच परमेश्वर ने अपना बाड़ा हमारे इर्द गिर्द बनाए There's रखा है। set an invisible boundary around us. और अनदेखी एक बाड़ा जो है, सुरक्षा चक्र जो है, वो हमारे इर्द The गिर्द है। spirit of death cannot come and touch us. मृत्यु की आत्मा आकर हमको स्पर्श नहीं कर We सकती है। thank the Lord for that. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उस बात के लिए। Last month, our focus verse was 2 Chronicles chapter 20, verse 15. और पिछले महीने जो है हमारा जो मूल वाक्य था वो दूसरे इतिहास का किताब 20वां अध्याय और 15वां वाक्य था। Especially the second portion of that particular verse. विशेष रूप से उस वाक्य का ब भाग। It says, "Thus says the Lord to you, do not be afraid nor dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours, but God's." यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। The coming couple of days that we are going to extensively meditate on these words. आने वाले दिनों में हम इन वाक्यों को लेकर वाक्यों पर मनन करेंगे। I'm telling you, the Lord will speak to you extensively in the name of Jesus और Christ. निश्चय ही परमेश्वर हमसे बात करेंगे यीशु मसीह के नाम I से। want you to go sit down and read the entire chapter 20. हम चाहते हैं कि वो 20वां आयत, वो अध्याय आप पूरी रीति से There पढ़ें। are so many spiritual lessons that you can learn from this place. वहां से हम बहुत सारे आत्मिक सीख को सीख सकते हैं। This morning I want us to learn at least 2 spiritual principles. और इस सवेरे के वक्त हम चाहते हैं 2 आत्मिक सिद्धांतों को यहाँ से हम सीख ले। Number 1 spiritual principle. और पहला आत्मिक सिद्धांत, If you read the verse 1, 2 and 3, that you can see. अगर आप इसी अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे वाक्य को पढ़ते हैं, आप देख पाएंगे। We can see that Jehoshaphat identified where the problem was. आप देखते हैं वहां पे यहोशफात जो है वो उसको मालूम रहता है कि प्रॉब्लम या समस्या कहां पे है। Jehoshaphat came to know that there are 3 armies that has risen against him. और यहोशफात को ये जानकारी प्राप्त होती है कि 3 देशों की सेना जो है उसके विरुद्ध आ रही है। Jehoshaphat had an understanding from where they were coming. और यहोशफात ये जानते थे कि कहां से आ रहा है। Hallelujah. 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 Even in your life, अपने जीवन में भी, even in the battles that you are into, जो युद्ध में हम हैं उसमें it is imperative for you to identify where the problem is. आपको ये समझ लेना है, जानना जरूरी है कि समस्या कहां पे है। It is important for you to know where it is coming from. कहां से आ रहा है। You need to know what are the problems, आपको ये जानना है कि क्या समस्याएं हैं, and you should know where it is coming और from. ये भी जान लेना है कि कहां से आ रहे That हैं। means to say the source of the problem. इसका मतलब है ये जो समस्या है, संकट है, इसका स्रोत क्या है। All those ones who are very close to me know that I always say this. और जो लोग मेरे
अपने नजदीकी के हैं वो जानते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ, after the greatest revelation of knowing God, और परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त करने के बाद if there is a revelation that's very important for us, अगर और कोई प्रकाशन है जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे it's the लिए, revelation of our own self. कि हम अपने आप को जान ले, अपने आप को पहचान ले। Or rather, I would put it like this. मैं इस तरह से इसको कहूंगा, Anybody who knows God जो भी परमेश्वर को जानते हैं, will know who you are or who He is. आप जानते हैं कि आप हकीकत में कौन है। Hallelujah. हालेलुया। You know, until Isaiah had a encounter with God in the temple of God, जब तक कि यशाया का परमेश्वर के साथ में मुठभेड़ नहीं हुआ परमेश्वर के मंदिर में, भवन में, Isaiah had a different picture of himself. यशाया का अपने आप के बारे में एक अलग ही चित्र था। Isaiah saw himself as a righteous man. यशाया ने अपने आप को एक धर्मी व्यक्ति करके जाना था, Isaiah saw himself as somebody who's in the middle of the will of God. और उसने सोचा था कि वो परमेश्वर की इच्छा के बीचों बीच है। Isaiah felt that he's doing good. उसको ऐसे लगा था कि वो अच्छा कर रहा है। But when Uzziah died, लेकिन जब उज्जाया राजा मर and गया Isaiah entered the temple of God, और आइजाया जो है, यशाया जो है, परमेश्वर के मंदिर भवन में आता है, when the Lord opened his eyes, जब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया, when he saw God जब उसने यहोवा को and the देखा holiness of और God, यहोवा के उस पवित्रता को देखा, he cried out and said, वो रोने लगा और कहने "Woe लगा unto me, कि हाय मुझ पर, my brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी as you बहनों, see him, जैसे आप उनको देखते as हैं, you receive the revelation of him, जैसे आप परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त कर लेते हैं। secondly, you begin to receive a revelation about yourself. दूसरी बात देखिए, आप अपने बारे में हकीकत को जानने लगते This हैं। morning, the Lord wants you to identify and know who you are and what are your problems. और इस सवेरे के वक्त परमेश्वर चाहते हैं कि आप जान लें कि आप कौन हैं और आपकी समस्याएं क्या क्या है। Many of us do not know who we are. हम में से बहुत लोग नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं। That would be the greatest deception that's playing upon us. और देखिए, ये एक भ्रम है जो शत्रु हमको डालता है। I pray that the Lord Almighty may remove this deception in the name of Jesus मेरी Christ. प्रार्थना ये है कि शत्रु का भ्रम जो है निकल जाए हमारे जीवन से यीशु के नाम से। Number two, दूसरी बात, I want us to know this very clearly. आप ये बात को स्पष्ट रूप से जान After लीजिएगा। identifying who you are, पहचानने के बाद, जानने के बाद कि आप कौन हैं, after identifying what are your problems, आपकी समस्याएं क्या है, ये जानने के after बाद, identifying the source of those problems, स्रोत कहाँ से है, ये जानने के बाद you need to humble yourself. आपको अपने आप को नम्र और दीन बना लेना है। In the same chapter, verse 12, Isaiah 20, 2 Chronicles 20, verse 12. और देखिए, वही दूसरे इतिहास की किताब 20वां अध्याय 12वें वाक्य में, I know Jehoshaphat makes a long prayer और यहोशाफात एक लंबी प्रार्थना को करते हैं and concludes it, and he says that we have no power over this vast army. और वो कहता है कि हमारे पास में कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ नहीं है इस महान सेना के विरुद्ध। And he says that our eyes is set on you. और यहोशाफात कहते हैं कि हमारी नजर यहोवा आपकी ओर लगी हुई है। My brother, second principle that I want you to know is this. और मेरे भाइयों, दूसरा सिद्धांत आप ये जान It ले, is very important for you to humble yourself in the times of difficulties. और जरूरी है कि आप और मैं अपने आप को नम्र करें ये कठिनाइयों के समय में। Humility is a crown virtue. और नम्रता जो है मानो एक मुकुट है। When we humble ourselves, जब हम अपने आप को नम्र बनाते this हैं, humility gives us great strength before God. और ये नम्रता जो है हमको परमेश्वर की ओर से या परमेश्वर के समक्ष सामर्थ देता है। Our humility, our meekness provokes God to stand up and fight for us. हमारी नम्रता, हमारी दीनता जो है जब हम दर्शाते हैं तो उसकी वजह से परमेश्वर हमारी ओर से खड़े होते हैं और लड़ते हैं। I want to ask you today, आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, this morning I want you to ask yourself, इस सवेरे के वक्त आप अपने आप are से पूछिएगा, you humble enough? क्या आप नम्र हैं? Are you acknowledging that you are wrong? क्या आप ये बात का कबूल करते हैं कि मैं गलत हूँ? My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, I want us to spend some quality time in prayer. अब प्रार्थना में आप जो है अच्छा समय If बिताइएगा। possible, pick up a journal, अगर हो सकता है तो एक किताब को a उठाइएगा, notebook, किताब को उठाइएगा pick up that pen
कलम को लीजिएगा Identify where your problems, what are your problems. और आप जांच कर देख लीजिएगा, पहचान लीजिएगा कि आपकी समस्याएं क्या है, Identify what is the source of that problem. और ये भी जान लीजिएगा कि ये जो समस्याएं है उसका स्रोत क्या है, And then go down on your knees, और फिर अपने घुटनों पर आइएगा, humble before God, परमेश्वर के सामने नम्र and बनिएगा tell the और Lord, परमेश्वर से कहिएगा, Lord, I identify and I see this as problems. परमेश्वर मैं ये कबूल करता हूँ और मैं पहचान गया हूँ कि ये समस्याएं हैं। Lord, set me free from these things. परमेश्वर इन बातों से मुझको आप मुक्त कीजिएगा, आजाद कीजिएगा। Begin to work on yourself. आप अपने आप पर पहले काम कीजिएगा, Not in your strength, but through the help of the Holy Spirit. अपने बल से नहीं लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता As से। you do this, जैसे आप ऐसा करते हैं, everything about your life shall change in the name of आपके Jesus जीवन के Christ. बारे में सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम We से। will continue to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करते As I रहेंगे। said that days are uncertain. जैसे हमने कहा कि दिन कैसे कैसे होगा, क्या होगा, हमको मालूमात नहीं है, But one thing is very certain. लेकिन एक बात जो है वो है, Our God is with us. हमारा परमेश्वर हमारे साथ, हमारे संग है। Our God is with us. हमारा परमेश्वर हमारे साथ, हमारे He will संग है। never leave us nor forsake वो हमको us. कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हमको कभी नहीं त्यागेंगे। With that assurance, और ये विश्वास के साथ I want you to spend quality time in the presence of God. परमेश्वर के उपस्थिति में आप अच्छा समय बिताइएगा, Spend quality time with your family. अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताइएगा, Quality time in the prayer. प्रार्थना में अच्छा समय Quality बिताइएगा, time in the reading of the word. वचन को पढ़ने में अच्छा समय बिताइएगा। It's a reflection time. ये अपने आप को जांचने का समय Let's है। introspect ourselves. हम अपने आप में जांचते हैं। I pray that the Lord be with you. प्रभु आपके साथ रहेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे।